हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ अक्टूबर मंथ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download using the Play Store, and it is available only for the Android users as of now. Once you have downloaded and opened the app, you will see a page such as the second screen here. Then you just need to log in with your Google ID, or you can say with your Gmail ID on this application, and once you have logged in, you are ready to use the particular application. As you can see, you will be seeing here my course, all courses, crack current affairs. Just click on any of those and you will be directed to a second page. Here now, what are the features or why we recommend you to use the app? Because on the app we provide you daily current affairs both in English as well as in Hindi. Both Hindi and English current affairs are provided you daily along with the quiz sessions. This is important. We provide you daily with the quiz sessions that will help you to brush up your current affairs that you gain today through our video or any other notes provided. These English and Hindi PDFs are also provided to you daily. This is provided on our app course that you can go and purchase. Two types of courses are there, 1 year plan and a second year plan, which you can opt as per your need. Then we provide you with weekly videos. Not just weekly videos on YouTube and monthly videos, daily videos are also given. Apart from that, weekly PDFs of current affairs are provided to you. Compiled PDF of current affairs of the whole week will be provided to you both in English as well as in Hindi. Then similarly for the month also, you will be provided a compiled video of the whole month both in English as well as in Hindi PDF for the current affairs that will brush up your current affairs very much. Apart from this, we provide you with the topic wise current affairs, topics such as apps and web portals, important days, books and authors. Then comes your sports, then comes your obituary, national affairs, international affairs, sports. These all topics are covered by us on our YouTube channel, which you can go and check it out also. Very important, very important this section, because we provide you with the PDFs also with them that helps you to revise through a particular order, and it is very helpful to you, so you should definitely check it out. Then apart from it, we provide you questions regarding your particular exams also, such as bank, related to your banking. We provide you questions, we provide you PDF, we provide you material that will help you to revise those topics, those important topics. So very important. All right, so I definitely recommend you to check our app and do revise and to purchase the courses, because they will be very helpful to you. These, I strongly recommend you to use our app as well as website, and the quiz provided on the app is very helpful to you on the daily basis, and our monthly study material for your exams will do wonders. So do watch the video for the revision purposes, they are very helpful. And if you use my code Vikas10, straight away you will be getting an additional 10% discount on the purchase you made using the application. So additional discount for you students just from my side. It is a happy hour sale, you can say 10% discount using Vikas10. So friends, let's start with the session now. तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, जो कि लॉन्च किया गया है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया का पहला अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया, किस स्टेट में लॉन्च किया गया, राजस्थान में या फिर जयपुर गिवन हो तो वहाँ पे किया गया है, किन के द्वारा सेटअप किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, एम और नीति आयोग के द्वारा मिलकर इसको सेटअप करा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 की। इसमें इंडिया की क्या रैंक रही। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्या, इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसी है, वहाँ पे इंटरनेट प्रॉपर आता है या नहीं आता, स्पीड कैसी है, कौन प्रोवाइड कर रहा है, लैग्स है या नहीं है, तो ये सारी सिक्योरिटी है या नहीं है। साइबर सिक्योरिटी का भी काफ़ी
इन्फ्लुएंस रहता है ऐसे इंडेक्सेस पे। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 की बात करें तो इंडिया की रैंक रहेगी 59th, और जिसने टॉप करा इस इंडेक्स में वो है डेनमार्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट, डेनमार्क पिछले 2 साल से लगातार इसको टॉप कर रहा है। सेकंड पे आया आपका साउथ कोरिया एंड थर्ड पे रहेगा आपका फिनलैंड, और इंडिया की रैंक रही 59th। टोटल इसमें 110 कंट्रीज़ की लिस्ट दी गई है, और इस बार ये थर्ड एडिशन रहेगा आपका डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का, जो कि प्रिपेयर किया जाता है सर्फ शार्क्स के द्वारा। ठीक है, आई रिपीट, सर्फ शार्क्स के द्वारा ये डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स प्रिपेयर करा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ एडिशन ऑफ इंडिया जापान मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। ये एक एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और जापान के बीच में होती है। लोकेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, कहाँ पे हुई है आपकी एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई अरेबियन सी में। ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या रहेगा एक्सरसाइज का? कुछ नाम भी तो होगा। अगर एक्सरसाइज कंडक्ट कहीं कराई गई है तो इसका क्या नाम रहेगा अगर मैं आपसे पूछूं? तो हम ये पहले कर चुके हैं, जिमेक्स, JIMEX इसका नाम रहेगा, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये अरेबियन सी में कंडक्ट कराई गई थी, और ये फिफ्थ एडिशन रहेगा इस मैरीटाइम एक्सरसाइज का। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट की, जिसमें बता रहे हैं कि ग्लोबल वाटर क्राइसिस ड्यू टू क्लाइमेट चेंज काफ़ी इफेक्ट करने वाला है, एंड टारगेटेड ईयर है 2050 तक। आप देखेंगे कि जो वाटर क्राइसिस है, जो वाटर की कमी है, वाटर की स्केर्सिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जो वाटर की परसेंटेज है ना क्लीन वाटर की, वो बहुत कम है, लेकिन जो कंजप्शन के लिए लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 0.5% ऑफ वाटर जो अर्थ पर है वो यूजेबल एंड अवेलेबल है एज फ्रेश वाटर। बाकी उसका सारा वाटर जो है वो फ्रेश वाटर की फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है, आपको पता है, ओशन की फॉर्मेट में या फिर नाले वगैरह। ये डाटा वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आया, जिसमें बताया कि ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स और ड्रॉट्स होंगी, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा लोगों को, और उस सब की दिक्कत होने वाली है। रिपोर्ट रहेगी द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस 2021 वाटर। इसके हिसाब से 3.6 बिलियन पीपल के पास अभी एडिक्वेट वाटर का नहीं है कि वो प्रॉपर वाटर को एक्सेस कर पाए, क्लीन वाटर को वो यूज़ कर पाए। ये 3.6 बिलियन से बढ़ के ये 5 बिलियन होने वाली है 2050 तक। अगर WMO की बात करें, सेक्रेटरी जनरल रहेंगे प्रोफेसर पेटेरी टालस, हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड का, एंड वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन 1950 में जाके बनी थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये डाटा हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, कि जो वर्किंग कंडीशंस है ना टीचर्स की नॉर्थ ईस्ट एरिया में, वो बहुत ज़्यादा पुअर है। मतलब वहाँ पे उनको सैनिटाइजेशन का भी प्रॉपर नहीं मिलता। अगर टीचर्स की ऐसी हालत है तो आप सोचिए बच्चों का तो और बुरा हाल होगा। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, आपसे ये पूछा जाएगा किसके द्वारा रिलीज़ की गई थी? तो यूनेस्को के द्वारा ये डाटा रिलीज़ किया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की। ये बताता है कि आपकी कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, एंड आप कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री जा सकते हैं, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो अगर हम Q2 की बात करें तो इंडिया की रैंक थी 84th इन 2021, और अब Q4 की बात करें 2021 की, तो इंडिया की रैंक 90 हो गई है। मतलब 6 स्पॉट इंडिया की रैंक और गिर गई है, 6 रैंक इंडिया का पासपोर्ट और कमज़ोर हो गया है। ठीक है, इंडिया 58 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं इंडियंस। ये हेनली एंड पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा। इंडिया की रैंक अब Q4 2021 में क्या है, 90वीं रैंक है। इस पे जो कंट्री टॉप कर है वो कौन है? जापान एंड सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है। ये दोनों कंट्रीज़ के सिटीजन्स 192 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। सेकंड बात आता है फिर आपका साउथ कोरिया एंड जर्मनी। इन दोनों कंट्रीज़ के जो वीज़ा होल्डर्स हैं वो 190 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री जा सकते हैं। हेनली एंड पार्टनर्स के अगर CEO की बात करें तो डॉक्टर जर्ग स्टेफन रहेंगे, और हेडक्वार्टर रहेगा लंदन, यूनाइटेड किंगडम में आपका इस हेनली एंड पासपोर्ट पार्टनर्स का। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी 1.26 बिलियन पीपल एट हाई इकोलॉजिकल रिस्क। ये सेकंड ETR रिपोर्ट है जो कि IEP के द्वारा रिलीज़ की गई। ETR क्या होता है? इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2021 की, जो थी अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजिकल थ्रेट्स, रेजिलियंस एंड पीस। ये रिलीज़ की गई थी IEP, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। इसमें बताया गया कि जो अराउंड 1.26 बिलियन पीपल अक्रॉस 30 कंट्रीज है ना, दे आर सफरिंग
फ्रॉम बोथ एक्सट्रीम इकोलॉजिकल रिस्क एंड लो लेवल ऑफ रेजिलियंस। जैसे 11 कंट्रीज़ की बात की गई, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, मेडागास्कर, एंड आप ये देखेंगे 11 कंट्रीज़ की यहाँ पे बात की गई हैं। एंड बोला जा रहा है कि जो ग्लोबल डिमांड फॉर फूड है ना 2050 तक, वो बढ़ के एक्सपेक्टेड राइज जो बताया गया वो है 50% तक इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब और ज़्यादा हमारी डिमांड बढ़ जाएगी फूड की। ठीक है, चलो फिर अगर हम बात करें आईईपी की बात करें तो फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन स्टीव किलेलिया रहेंगे, हेडक्वार्टर रहेगा सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको नोट करके चलिएगा, कि अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्लीन हेल्दी इन्वायरमेंट को एक ह्यूमन राइट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया है, किसके द्वारा? यूएनएचआरसी के द्वारा। ये है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा इसको एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया है, क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट को। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके ह्यूमन राइट्स का या फंडामेंटल राइट्स को टेक केयर करती है, उसको ध्यान रखती है कि लोगों उसके मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई फॉलो किया जा रहा है एंड आपको उनसे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे WHO एंड पार्टनर्स के द्वारा लॉन्च किया गया फर्स्ट एवर ग्लोबल स्ट्रेटजी टू डिफीट मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक क्या है? मेनिंजाइटिस एक इन्फ्लेमेशनरी डिजीज है जो कि अफेक्ट करती है मेम्ब्रेन्स को सराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो आपकी मेम्ब्रेन है उसको अफेक्ट करने के लिए डिजीज है। ये दोनों बैक्टीरिया एज वेल एज वायरस से कॉज की जाती है, लेकिन वायरस से जो की जाती है कॉज ये मेनिंजाइटिस डिजीज, ये ज़्यादा डेडली होती है एंड अराउंड 2.5 लाख लोगों को हर साल इसकी वजह से डेथ होती है। अगर WHO का टारगेट देखा जाए तो ये WHO का टारगेट रहेगा कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है इसको 2030 तक हम खत्म कर देंगे एंड जो ओवरऑल रेट है डेथ का उसको रिड्यूस कर देंगे 70% तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्न्स्ट एंड यंग्स का, ENY होती है आपकी अर्न्स्ट एंड यंग, इनका रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 की, जिसमें इंडिया की रैंक रही 3rd। मतलब कौन सी कंट्री इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए, जैसे बिजनेसमैन कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो देखें कि रिन्यूएबल एनर्जी में किसी को इन्वेस्ट करना है तो कौन सी कंट्री ज़्यादा बेटर रहती है रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इंडिया इस रैंक पे 3rd आई है और जिसने टॉप किया है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, जो कि ENY के द्वारा रिलीज किया गया। अगर इसमें रैंकिंग देखें कंट्रीज़ की तो टॉप पर आता है US, सेकंड पे चाइना, 3rd पे इंडिया, 4th पे फ्रांस, 5th पे रहेगा आपका UK इन द टर्म्स ऑफ क्या? रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, जो कि रिलीज किया जाता है अर्न्स्ट एंड यंग्स ग्लोबल के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कम से कम $4 ट्रिलियन हमें चाहिएंगे अगर हमें क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट को करना है। अगर जैसे क्लीन एनर्जी क्या हो गई, जैसे आपकी सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी। अगर हमें जैसे अब हाइड्रोजन फ्यूल भी आ रहा है आपका जो कि एक ग्रीन एनर्जी है, अगर हमें इनमें इन्वेस्ट करना है तो हमें और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने नहीं देना जो हमारा पेरिस का एग्रीमेंट था उस हिसाब से, तो हमें कम से कम $4 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 2030 तक, ताकि जो ये टारगेट हैं, जो गोल हमने सेट किए हैं उसको फुलफिल किया जा सके। ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट थी जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज करी गई थी। $4 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट पेरिस एग्रीमेंट को मीट करने के लिए 2030 तक, ताकि 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ही बढ़ पाए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया एंड USA के द्वारा एक्स युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज कराई गई, कहाँ पे? अलास्का, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही है। ठीक है, क्या? युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन पेंशन सिस्टम की। इंडियन पेंशन सिस्टम वर्ल्ड के जो 43 पेंशन सिस्टम है उसमें से इंडिया की रैंक रहती है 40th। काफ़ी लो रैंकिंग है, काफ़ी मतलब अच्छी रैंकिंग नहीं है। अगर इंडियन पेंशन सिस्टम की बात की जाए तो वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो इंडिया की पेंशन सिस्टम आपका वर्ल्ड के 40th पोजीशन पे आता है। 43 पोजीशन का डाटा निकाला गया था एंड जो ये रिलीज़ करता है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करना। मर्सर इंडेक्स रैंकिंग के द्वारा ये डाटा रिलीज़ किया जाता है। मर्सर ग्लोबल या मर्सर कंसल्टिंग ग्रुप इसको रिलीज़ करता है आपका मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को, जिसमें इंडिया की रैंक रहेगी 40। फर्स्ट पे रहा आइसलैंड, मतलब अगर आइसलैंड में बात की जाए तो सबसे अच्छी पेंशन वहाँ पे है। सेकंड नीदरलैंड, 3rd डेनमार्क, सबसे लोएस्ट आता है थाईलैंड और 43 पे रहेगा आपका इंडिया।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की। तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 71 रैंक रहेगी। ये 113 नेशंस का निकाला जाता है, जिसमें से इंडिया की रैंक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में क्या है? 71st। नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडिया की क्या रैंक रहेगी इस इंडेक्स में? 79 रहेगी। और अगर पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं तो 130 रैंक रहेगी आउट ऑफ 139 कंट्रीज। ठीक है, तो पाकिस्तान की है 139 और 130 एंड इंडिया की रैंक रहेगी 79 इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप, मैंने बोला ना टॉप वाला याद रखना है। और इंडिया की रैंक 79 और डेनमार्क की रहेगी आपकी फर्स्ट इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रे लिस्ट की। ग्रे लिस्ट आप सबको पता होना चाहिए। ग्रे लिस्ट FATF की ग्रे लिस्ट होती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। ये वो कंट्रीज इस लिस्ट में आती हैं जो कि टेररिज्म को फाइनेंस करती हैं। मतलब जो पैसा इनको मिलता है वो टेररिज्म को फाइनेंस करने में लगा देते हैं, मतलब आतंकवाद को बढ़ावा देने में हेल्प करती हैं ये कंट्रीज, इसलिए ये ग्रे लिस्ट पे रहती हैं। और जो कंट्री ग्रे लिस्ट पे आ जाती हैं उनको जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक या फिर आप न्यू डेवलपमेंट कह दीजिए, इनके द्वारा जो लोन मिलता है, वर्ल्ड बैंक जैसे जिसको लोन देता है ताकि वो अपना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकें, तो ऐसे लोन फिर ये बंद हो जाते हैं जो कंट्रीज ग्रे लिस्ट में होती हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान अभी स्टिल ग्रे लिस्ट में है, FATF की ग्रे लिस्ट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है एक्वेटिक लाइफ में वो ट्रिपल हो जाएगा बाय 2040। ठीक है, मतलब हम इतना ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं अपने ओशंस को, रिवर्स को, वाटर बॉडीज़ को कि जो उसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो ट्रिपल हो जाएगा बाय द ईयर 2040। और ये रिपोर्ट में आया आपके किसकी? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया अभी टॉप 10 में आया फॉर द क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट। ये 9th पोजीशन पे आया है, याद रखना, इन द टॉप 10। ये क्या है कि जो क्लाइमेट को टैकल करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट लग रही है, ठीक है, उसमें जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट को फॉलो करने के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्लाइमेट के लिए, उसमें जो इंडिया की रैंक रहेगी 9th रहेगी इन द टॉप 10 कंट्रीज फॉर द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट। 2016 से 2021 तक की ये डाटा रिलीज किया गया। एंड किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? लंदन एंड पार्टनर्स एंड dealroom.com के द्वारा ये डाटा रिलीज किया जाता है कि इंडिया की रैंक रहेगी 9th। नेक्स्ट एंड लास्ट आज की वीडियो का हमारा रहेगा, इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया विद द मिराज 2000 फ्लीट से। मिराज 2000 आपका ये प्लेन है, स्पेसक्राफ्ट नहीं, एरोप्लेन है। एंड इसको जो चलाते हैं उनकी फ्लीट ने पार्टिसिपेट किया ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज 2021 की, जो कि इजराइल में होती है। तो अगर मैं बात करूँ ब्लू फ्लैग किन के बीच में होती है? इंडिया एंड इजराइल के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। Hello friends, through our recent general aware section analysis, we have identified that the news related to mega events is finding more weightage in the competitive exams. In order to cover related news to mega events such as Olympics, national awards, cabinet appointments, all of which contain heavy information, we have chosen a different way to convey that information using interactive infographics. Here is an example of interactive infographics. Using this, you can choose to study various information just from the single PDF. If you want to talk about the medal tally of Tokyo Olympic Games, just by clicking on the image of medals, you will be able to see the information related to medals. Now, if you want to study about any of the players mentioned here, just by clicking on the image of that particular player, you will be getting the information related to that particular player. Now, you will be provided with two types of PDFs. One is your desktop version and second is your mobile version. As the name suggests, desktop version is for both PCs, laptops, and your mobile version is basically for the mobile phones and tablets. In order to use your desktop version in mobile phone, you can use the software of WAPS application in your Google Play, and you can access the desktop version of the file in the phones also. So friends, this format of presentation will help you to remember all the valuable information in an easy manner by connecting information to the related images. Our team has worked immensely hard to bring this to you, and so please do share your valuable suggestions and feedback through comments, as it will boost us to create further such initiatives.
Thank you. So friends, this was our video. I hope you enjoyed our video. If you liked our video, do hit the like button, share the link with your friends, and if you haven't subscribed to our channel or if you are new to our channel, then do subscribe because it motivates us to bring a better content for you guys. Also, if you have any trouble regarding login or payment or any other issues, then you can reach to us on our mail, that is support@affairscloud.com, or you can call us on the number 9677333862 and we'll resolve your issue as soon as possible. Also, you should go and check our courses that are available at a very reasonable price and that will help you to boost your preparation.